طرابلس کا سورج جب افق پر طلوع ہوتا تو لگتا جیسے سونے کی چادر پورے شہر پر بچھ گئی ہو۔ نیلے آسمان کے نیچے پھیلا ہوا شہر، سفید سنگ مرمر کے محل، بل کھاتی گلیاں اور خوشبودار باغات سب کسی خواب کی مانند معلوم ہوتے تھے، اور اس خواب کے مرکز میں تھا وہ محل جسے لوگ قصر مہتاب کہتے تھے، کیونکہ جب چاندنی ہوتی ہے تو وہ محل بھی چاندنی کی طرح ہیں۔ راتوں میں اس کے گنبد پر روشنی پڑتی تو وہ چاند سے زیادہ چمکتا۔ یہی وہ محل تھا جہاں طرابلس کی اکلوتی شہزادی نائلہ نے آنکھ کھولی تھی۔ نائلہ، بادشاہ عبد المالک کی بیٹی، نہ صرف اپنی حسن و جمال میں بے مثال تھی، بلکہ اس کے دل میں علم کی ایسی پیاس تھی جو عام شہزادیوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ طلسمی کہانیوں، بزرگوں کے اقوال اور خوابوں کی تعبیرات میں غیر معمولی دلچسپی رکھتی تھی۔ اکثر محل کی چھت پر بیٹھ وہ ستاروں سے باتیں کرتی اور آسمان کے پار چھپی کسی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ایک رات جب سارا محل گہری نیند میں ڈوبا تھا، نائلہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ وہ ایک ویران صحرا میں کھڑی تھی، گرد و غبار کی لپٹیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ یکایک ایک فقیر کی آواز سنائی دی، نہایت پرسکون، گہری اور جادو بھری۔ اے چمکتی شہزادی، جو کچھ تمہیں ڈھونڈنا ہے وہ تمہارے محل کی دیواروں کے باہر ہے۔ نائلہ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دھندلے سائے میں لپٹا ہوا بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس پر قدرتی موتی جگمگا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں گویا ہر راز کی محافظ تھیں، اور پھر اچانک خواب کا منظر ٹوٹ گیا۔ نائلہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا۔ اگلی صبح شہزادی نے محل کی کتب خانے میں تمام کتابیں چھان ماریں، خوابوں کی تعبیرات، اولیاء کی حکایات اور قدیم روایات، مگر ایسا کوئی فقیر کہیں درج نہ تھا، نہ ایسی آواز، نہ ایسی تعبیر۔ محل کی خادمہ نعیمہ خاتون، جو بچپن سے نائلہ کی ساتھی تھی، شہزادی کے بدلے ہوئے انداز پر حیران تھی۔ شہزادی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ رات کو ٹھیک سے سوئیں بھی تھیں؟ نائلہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، نعیمہ، میرے خواب نے مجھے جگا دیا ہے، میں اب سونا نہیں چاہتی، جاگ کر حقیقت ہے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس دن کے بعد نائلہ کی توجہ درباری مشغلوں سے ہٹنے لگی۔ ناچ، ساز، زیورات سب بے معنی لگنے لگے۔ وہ دن میں خاموش رہتی اور رات کو چھت پر ستاروں سے الجھتی۔ بادشاہ عبد المالک کو بیٹی کی حالت کا اندازہ ہونے لگا، لیکن وہ اسے وقتی کیفیت سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ پھر ایک دن محل کے باہر کے باغ میں نائلہ ٹہل رہی تھی جب اس نے فقیر کے سے کپڑوں میں لپٹے ایک بوڑھے درویش کو دیکھا جو محل کے پھاٹک کے قریب لوگوں کو کچھ سنا رہا تھا۔ شہزادی نے چھپ کر سنا، دنیا کی سب سے بڑی قید وہ ہے جو آنکھوں کو آزادی کا دھوکہ دیتی ہے۔ یہ سن کر نائلہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہی انداز، وہی لہجہ، گویا خواب زندہ ہو گیا ہو۔ کون ہے یہ؟ شہزادی نے نعیمہ سے سوال کیا۔ یہ فقیر ظہیر ہے بی بی، شہر کے باہر ایک ٹیلے پر بسیرا کرتا ہے، بہت دانا اور عجیب شخص ہے، کوئی اسے مجذوب کہتا ہے، کوئی ولی۔ نائلہ نے اس دن فیصلہ کر لیا، وہ فقیر کو ملے بغیر اب ایک لمحہ بھی نہ گزارے گی۔ طرابلس کے محل سے کچھ کوس دور ایک بلند ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا تھی۔ درختوں کے جھرمٹ میں چھپی ہوئی یہ کٹیا نہایت سادہ تھی۔ ایک مٹی کا چبوترا، ایک جلتا ہوا چراغ اور ایک فقیر جس کی داڑھی چاندی جیسی تھی، لباس گرد آلود، لیکن چہرے پر وہ نور جو عام انسانوں میں نہ پایا جاتا تھا۔ اس فقیر کا نام ظہیر تھا۔ اہل طرابلس میں وہ مشہور تھا۔ کوئی کہتا کہ وہ بزرگ ہے، کوئی کہتا پاگل، اور کچھ کہتے کہ وہ صوفی ہے جس نے دنیا سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ لیکن جس نے بھی اس کی بات سنی وہ کچھ لمحوں کے لیے خود کو بھول گیا۔ اسی فقیر کو دیکھنے کا قصد شہزادی نائلہ نے کیا۔ وہ نہایت سادہ لباس میں، چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر، نعیمہ کو ساتھ لیے محل سے نکل پڑی۔ شہر کی گلیوں سے گزرتے لوگوں کے شور ہو رہا تھا۔ سے دور وہ اس جگہ پہنچی جہاں صوفی ظہیر کا بسیرا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ دور کھڑی دیکھتی رہی۔ ظہیر چبوترے پر بیٹھا کچھ بچوں کو کہانیاں سنا رہا تھا۔ نہ شہزادی، نہ تخت، نہ تاج، صرف ایک درویش اور اس کی کہانیاں۔ ایک بچہ بولا، بابا جی، سچ کی پہچان کیا ہے؟ فقیر مسکرایا، جب تم جھوٹ بولنے پر بھی خود کو مجرم محسوس کرو، سمجھو سچ تمہارے قریب ہے۔ شہزادی کی روح لرز گئی۔ یہی وہ آواز، یہی لہجہ، یہی فقرہ اس نے خواب میں سنا تھا۔ نعیمہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا یہی ہے وہ فقیر؟
تمہارے خوابوں کا؟ نائلہ خاموش رہی۔ وہ بولنا چاہتی تھی پر الفاظ گم ہو گئے تھے۔ اسی لمحے فقیر ظہیر نے نظریں اٹھائیں۔ دور کھڑی نقاب پوش لڑکی پر ایک لمحے کو نگاہ ڈالی اور پھر جیسے اس کے دل کا پردہ چاک ہو گیا۔ جو تلاش کرتی ہے وہ آ چکی ہے، فقیر نے آہستہ سے کہا، مگر شہزادی نے سن لیا۔ نائلہ دھیرے قدموں سے آگے بڑھی، ادب سے سلام کیا۔ فقیر نے سر جھکایا۔ سلام دل سے ہو تو صدا ہے، عرش تک پہنچتی ہے۔ میں، نائلہ کی آواز لرز گئی، میں خواب میں آئی تھی اور آپ وہاں تھے۔ ظہیر نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی پردہ ہٹ رہا ہو۔ تم نے خواب میں وہی دیکھا جو تمہارے دل میں چھپا ہے۔ میں صرف اس خواب کا ترجمان ہوں، حقیقت کا نشان نہیں۔ نائلہ بیٹھ گئی، گویا زمین اس کے قدموں سے چھن گئی ہو۔ تو کیا یہ سب خواب تھا؟ فقیر نے نرمی سے جواب دیا۔ نہیں شہزادی، یہ خواب تمہیں حقیقت کی طرف لے جانے والا دروازہ ہے۔ تم جو محل میں رہتی ہو وہ قید ہے، اصل سلطنت تمہارے اندر ہے۔ نائلہ نے نگاہیں جھکا لیں۔ تو کیا میں اپنے اندر کی سلطنت کو جان سکتی ہوں؟ ظہیر مسکرایا۔ جان سکتی ہو اگر تم سوال کرنے کی ہمت رکھتی ہو، لیکن یاد رکھو ہر سوال کی قیمت ہوتی ہے، کبھی سکون، کبھی غرور، کبھی اپنا وجود۔ اسی لمحے دور اذان کی آواز گونجی۔ ظہیر نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور شہزادی کی طرف دیکھا۔ تمہارے تاج کی مٹی سے ہی تمہاری بادشاہی نکلے گی، اگر تم اسے پہچان سکو۔ نائلہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس فقیر کو دنیا دیوانہ کہتی ہے، وہ دراصل وہ آئینہ ہے جس میں وہ اپنی اصل صورت دیکھ سکتی ہے۔ وہ اٹھی، ادب سے جھکی اور واپس پلٹنے لگی۔ فقیر نے پیچھے سے پکارا، اگلی بار جب آؤ اپنے دل کے ساتھ آنا، زبان اور چہرے کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ سفر صرف دل والوں کا ہے۔ دن چڑھتے ہی طرابلس کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ گویا شہر کی گلیاں، بازار اور قصر ماہتاب سب کسی ایسی چیز کے منتظر تھے جو ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو۔ شہزادی نائلہ مگر جانتی تھی کہ اس کے دل کے اندر کوئی طوفان اٹھ چکا ہے۔ فقیر ظہیر کی باتوں نے اسے نہ صرف چونکا دیا تھا، بلکہ وہ آئینہ دکھایا ہے تھا جسے دیکھنے کی کبھی ہمت نہ کی تھی۔ محل میں واپسی پر نائلہ کا انداز بدلا ہوا تھا۔ اب وہ نہ بارہ دری میں ساز سنتی، نہ آئینہ خانے میں خود کو دیکھتی، نہ درباریوں کی خوشامد سے متاثر ہوتی۔ وہ اکثر محل کی پچھلی دیوار کے قریب والے باغ میں جا کر گھنٹوں بیٹھتی اور ایک ہی سوال بار بار دہراتی، میں کون ہوں؟ نعیمہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بچپن سے شہزادی کو جانتی تھی، لیکن ایسا سکوت، ایسی گم سم آنکھیں پہلی بار دیکھی تھیں۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے پوچھا، ہوں بی بی، یہ ظہیر آخر آپ کو دے کیا گیا ہے؟ نائلہ نے دھیرے سے جواب دیا، سوال نعیمہ، اس نے مجھے سوال دیے ہیں، لیکن آپ تو ہمیشہ جوابوں کی تلاش میں رہتی تھیں۔ اب سمجھ آئی ہے نعیمہ کہ جواب نہیں، صحیح سوال اہم ہوتا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ نائلہ نے ظہیر کے پاس دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار وہ فقیر کے الفاظ کے مطابق دل کے ساتھ گئی۔ نہ نقاب، نہ خادمہ، نہ جوتے، بس ایک سفید سادہ چادر میں لپٹی، جیسے ایک سائل ہو۔ ظہیر چبوترے پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے شہزادی کو آتے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ نائلہ خاموشی سے اس کے قدموں کے قریب زمین پر بیٹھ گئی۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ شہزادی کی پلکیں بھی ساکت ہو گئیں۔ پھر نائلہ نے پوچھا، ظہیر، میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ فقیر نے گردن اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ پہلا سوال دل کی زمین کو ہلانے والا ہونا چاہیے۔ اگر زمین سوکھی ہے تو بیج رائگاں جائے گا۔ نائلہ نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے، میں جو شہزادی کہلاتی ہوں کیا واقعی کچھ جانتی ہوں؟ ظہیر کی آنکھوں میں ایک روشنی لہرائی۔ یہ سوال تم نے نہیں، تمہارے دل نے کیا ہے۔ اس کا جواب تمہیں محل میں نہیں ملے گا۔ تو کہاں ملے گا؟ نائلہ کی آواز میں اضطراب تھا۔ فقیر نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور بولا، جواب تمہارے اندر ہے، لیکن اندر جانے کے لیے باہر سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے۔ کیسے؟ نائلہ نے بےقراری سے پوچھا۔ ظہیر نے اسے ایک پہیلی دی، اگر ایک پرندہ پنجرے میں رہ کر اڑنے کے خواب دیکھے تو وہ کیا آزاد ہے؟ نائلہ نے سوچا اور کہا، نہیں، کیونکہ خواب ہے بھی اگر پنجرے کے اندر ہوں تو وہ قید کی دوسری شکل ہے۔ فقیر مسکرا اٹھا۔ تم جاننے لگی ہو۔ اس دن کے بعد نائلہ ہر روز ظہیر کے پاس آتی۔
हर दिन एक नया सवाल और हर सवाल के पीछे एक नई दीवार जो गढ़ती थी। ज़हीर उसे पहेलियाँ देता, हकायात सुनाता और कभी खामोशी से सिर्फ मिट्टी को देखता। और नाइला, जो कभी सोने की चमक में पली बढ़ी थी, अब मिट्टी में अपना अक्स तलाश करने लगी थी। एक दिन फ़कीर ने उसे पूछा, नाइला, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ताज, महल, रतबा, तो क्या तब भी तुम सवाल करती रहोगी? शहजादी ने पलकें झपकाएं और कहा, अगर मैं खुद को न जान पाऊं तो वो ताज किस काम का? मैं रहूं या न रहूं, जो जानने का ख्वाब मेरे अंदर है वो मर नहीं सकता। फ़कीर ज़हीर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, वक्त करीब है, अगला सवाल तुम्हें महल के दर व दीवार हिलाकर रख देगा। तराबलुस के कसरे महताब में वो सुबह आम सुबहों जैसी न थी। महल की फ़ज़ा में एक बेचैनी तैर रही थी। ख्वाजा सरा दौड़ते फिर रहे थे, कनीज़ें आपस में सरगोशियाँ कर रही थीं और दरबारियों की पेशानियाँ शकन आलाद थीं। बादशाह अब्दुल मालिक खुद तख्त पर बेचैन बैठा था, क्योंकि आज चौथे दिन भी शहजादी नाइला सुबह दरबार में हाजिर न हुई थी। नईमा, कहाँ है शहजादी? बादशाह की आवाज़ गूंजी। नईमा लरुजती हुई हाजिर हुई, आंखों में अलझन, दिल में खौफ। हुजूर, वो बाग में होती हैं अक्सर या बाहर जाती हैं, कुछ दिनों से खामोश हैं। बाहर? महल के बाहर, बगैर इजाज़त? बादशाह का चेहरा सरख हो गया। उसकी बेटी, वो नाजों में पली हुई, वो शहजादी जिसकी एक झलक पर शहजादे मर मिटते, वो आम लोगों के बीच, ये नाकाबिले कबूल था। नईमा, अगर आज शाम तक वो महल में न आई तो मैं खुद जाकर देखूंगा वो कहाँ रहती है। नईमा ने दिल में खुदा को पुकारा, क्योंकि उसे इल्म था कि शहजादी कहाँ जाती है। फ़कीर ज़हीर के पास। इधर नाइला उस वक्त ज़हीर के साथ दरख्तों के साए तले बैठी थी। आज ज़हीर ने ज़मीन पर दो लकीरें खींच रखी थीं, एक सीधी, एक टीढ़ी, और शहजादी को हुक्म दिया था, इन दोनों में से एक को मुंतखब करो, बगैर कोई सवाल किए। नाइला कुछ लम्हे सोचती रही, फिर सीधी लकीर की तरफ इशारा किया। ज़हीर ने गहरी सांस ली। तुमने वो रास्ता चुना जिस पर सब चलना चाहते हैं, सीधा, साफ, आसान, मगर यही वो है जो हमेशा हमेशा होगा। रास्ता है जहाँ सबके कदमों के निशान होते हैं, जहाँ तुम खुद को कभी न पा सकोगी। नाइला का दिल धड़का। तो मैं गलत चली? ज़हीर मुस्कुराया। गलती नहीं, सीखने का दरवाज़ा है। अब टीढ़ी लकीर को गौर से देखो, क्या तुम्हें उसमें अपनी झलक नज़र आती है? नाइला ने देखा। इस लकीरें बल खाती थीं, जैसे किसी कहानी की शुरुआत, जैसे दिल की राह जो कभी सीधी नहीं होती। यही रास्ता है नाइला, जो तुम्हें तुम तक ले जाएगा। लेकिन याद रखो, महल की दीवारें तुम्हें खींचेंगी, तख्त तुम्हें आवाज़ देगा और दुनिया तुम्हें दीवानी समझेगी। इसी लम्हे घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। कई सिपाही तेज़ी से फ़कीर की कुटिया के करीब आ रखे। उनके साथ बादशाह अब्दुल मालिक था, कहर बरसाती निगाहों के साथ। नाइला, इसने धाड़ कर कहा, ये सब क्या है? तू एक फ़कीर के साथ दिन गुजार रही है। नाइला आहिस्ता से उठी। वो वही शहजादी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में खौफ नहीं, रोशनी थी। आबा हुजूर, मैं जानने निकली हूँ, वो जो महल में न मिला। जानना? तुम एक मिलंग के साथ बैठकर बादशाही के आदाब भूल गई हो? ज़हीर खामोश रहा, जैसे उसका ताल्लुक़ किसी और वक्त से हो। नाइला ने एक लम्हा फ़कीर की तरफ देखा, फिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर तख्त वो है जो मुझे मेरे आप से दूर कर दे तो वो तख्त बेकार है। अगर शहजादी होना सिर्फ सुनहरी जंजीर है तो मैं वो जंजीर तोड़ दूंगी। बादशाह शिश्त्र रह गया। ये उसकी वो बेटी नहीं थी जिसे वो सोने के पिंजरे में रख कर बड़ा करता आया था। मैं तुम्हें महल ले जा रहा हूँ, अभी। उसी वक्त वो गराया। ज़हीर ने पहली बार लब खोले। बादशाह सलामत। बेटी को कैद में डालकर आप बाप नहीं रहते, सिर्फ हुक्म चलाने वाला रह जाता है। अगर ये बेटी सवाल करती है तो उसके हक़ में सबसे बड़ी दुआ ये है कि उसे सवाल करने दें। अब्दुल मालिक के चेहरे पर सुनाटा छा गया। वो घोड़े पर सवार हुआ और काफ़िला वापस पलट गया। लेकिन एक बाप के दिल में पहली बार सवाल जाग उठा था। नाइला ज़हीर के कदमों में बैठ गई। आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा रोशन। ज़हीर, आज मैं हार गई। ज़हीर ने सिर पर हाथ रखा। नहीं, आज तुमने वो सवाल जीता है जो किसी किताब में नहीं होता। कसरे महताब की एक पछली कोठरी जो बरसों से बंद थी, आज खोली गई। माजी में वो जगह शायद महल की पुरानी लाइब्रेरी थी, लेकिन अब वो नाइला की कैद का मकाम बन चुकी थी।
बादशाह अब्दुल मालिक ने साफ अल्फाज में हुक्म दिया था, जब तक ये होश में न आ जाए महल से बाहर कदम न रखे, न उसे कोई मिलने आए, न ये किसी से बात करे। दरवाजे के बाहर खाना रख जाती, लेकिन अंदर दाखिल न हो सकती। नाइला मगर शिकवा न करती। वो फ़कीर ज़हीर के अल्फाज, वो सवाल, वो पहेलियाँ अपने अंदर दहराती रहती। एक शाम जब सूरज की आखिरी करनें दीवार पर सुनहरी लकीरें खींच रही थीं, नाइला ने अपने हाथों की तरफ देखा, नरम, सफ़ीद, नाजुक, और फिर आहिस्ता से कहा, क्या उन्हीं हाथों ने मेरे लिए क़ैद के दरवाजे खोले? दीवार पर एक पुरानी किताब की अलमारी अभी भी मौजूद थी। नाइला ने वो गरद ज़दा दरवाज़ा खोला तो अंदर एक पुराना नुस्खा गरा, सरख रंग की जल्द जिस पर धंधले अल्फाज दर्ज थे, कश्फुल क़ुलूब। वो हैरान हुई, ये क्या है? उसने नुस्खा खोला तो सफ़हा अव्वल पर एक जमला दर्ज था, जो अपने दिल का दरवाज़ा खोल ले, क़ैद उसके लिए रहाई बन जाती है। नाइला की पलकें लर्ज़ गईं। क्या ये इत्तेफाक था, या वो फ़कीर पहले ही सब जानता था? इस नुस्खे में छोटी छोटी हिकायात, अशआर और सवाल दर्ज थे, हर एक ज़हीर की बातों जैसा था। मिसलन, वो शख्स जो हर वक्त आईना साथ रखे, क्या वो खुद को देखता है या सिर्फ चेहरा? नाइला ने कई दिन उसी नुस्खे को पढ़ते हुए गुजारे। अब वो क़ैद एक तन्हाई न रही, बल्कि एक खलौत बन गई, जहाँ बाहर की दुनिया गम और अंदर की दुनिया जाग उठी। कभी वो दीवार से टेक लगाकर ज़हीर की आवाज़ का तसव्वुर करती, कभी वो आंखें बंद करके अपने बचपन को याद करती, कभी वो खुद से सवाल करती, क्या मैं वो हूँ जो लोगों ने कहा, या वो जो मैं जानना चाहती हूँ? इधर ज़हीर शहर से दौर एक वीरान मज़ार पर बैठा था। वहाँ आने वाले अक्सर इससे पूछते, फ़कीर, तुम इस महल की शहज़ादी को बिगाड़ रहे हो। ज़हीर मुस्कुराकर कहता, मैं कुछ नहीं बिगाड़ रहा, मैं सिर्फ उसकी आंखों से पर्दा हटा रहा हूँ। एक पुराना बुजुर्ग जो मज़ार की देखभाल करता था, ज़हीर के करीब आया और बोला, ज़हीर, दिल की क़ैद है, सख्त होती है, मगर जिसने सच में उसे सहा, वो बादशाह होता है, चाहे ताज हो या ना हो। ज़हीर ने जवाब दिया, और वो शहज़ादी जो क़ैद में कश्फ कर ले, वो किसी बादशाही से कम नहीं। 15 दिन बाद नाइला के कदमों से जंजीरें हटा दी गईं, लेकिन वो न रोई, न चीखी, न महल से बाहर भागी। वो बस चुप रही और किताब के आखिरी सफ़े पर लिखी इस सत्र को बार बार दोहराती रही, खामोशी वो इबादत है जो दिल को इसके रब से मिलवाती है। इस दिन के बाद कसरे माहताब में एक नई नाइला रहने लगी, जो कम बोलती, ज़्यादा सुनती, जो सादगी से जीती, मगर उसकी आंखों में एक रोशनी जाग उठी थी। बादशाह अब्दुल मालिक अब चुपचाप अपनी बेटी को देखता और उसके दिल में पहली बार ये एतराफ़ अभरता, शायद ये फ़कीर शहज़ादी को वो दे गया जो मैं एक उम्र में न दे सका, खुद की पहचान। कसरे महताब की वो रात बेहद प्रसरार थी। आसमान पर चांद मुकम्मल था, मगर उसकी चमक में कोई अजीब सा धुंधलापन था, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर खामोश हो। नाइला की खिड़की के बाहर चांदनी एक फर्श की सूरत बुझ चुकी थी और शहजादी इस पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे चांद भी इस फ़कीर की तरह कोई राज छिपाए हुए हो। उसकी पलकें बोझल हो रही थीं, और फिर नींद उसे अपने आगोश में ले गई। इस ख्वाब में वो एक वीरान मैदान में खड़ी थी, चारों तरफ धिंड थी। अचानक एक आवाज़ आई, वही ज़हीर की, मगर और गंभीर और प्रासरार, नाइला, ख्वाब में अगर तुम खुद को पालो तो जागने की ज़रूरत ही नहीं। वो मड़ी और ज़हीर सामने खड़ा था, लेकिन उसके कपड़े आम नहीं थे। उसके सर पर एक फ़कीराना अमामा, कुंधे पर पैवंद ज़दा चादर, मगर आंखों में एक आग, एक रोशनी। ज़हीर, ये कहाँ हैं हम? ज़हीर ने ज़मीन की तरफ इशारा किया। वहाँ एक कनवा था, पुराना, गहरा, सियाह। ये वो कनवा है जिसमें हर इंसान का असल छिपा है, लेकिन जो इसमें झांकता है वो या तो रोशनी देखता है या अपने अंधेरे से डर जाता है। तुम तैयार हो? नाइला ने सिर हिलाया, धीरे से कनवे के किनारे गई और अंदर झांका। उसे अपना चेहरा नजर आया, मगर ऐसा चेहरा जिस पर तख्त का गुरूर, नगीनों का वज़न और मोहब्बत की प्यास एक साथ मौजूद थी। वो घबरा गई। ज़हीर, ये मैं नहीं हूँ। ज़हीर की आवाज़ गूंजी, ये तुम हो, जैसी तुम्हें दुनिया ने बनाया। अब तुम फैसला करो, उसे रखना है या छोड़ देना है। नाइला की आंखों से एक आंसू गिरा, और जैसे ही वो आंसू हो गए, कनवे में गिरा, मंजर बदल गया।
अब वो एक सफ़ेद लिबास में थी, हाथ में कोई किताब थी, वही कश्फुल क़लूब, और उसके सामने ज़हीर बैठा था। पर वो ज़हीर इंसान न लगता था, जैसे कोई पुराना दरवीश, जैसे वक्त का मुसाफिर। ज़हीर ने नरमी से कहा, जब तुमने ख्वाब में हकीकत को देखा, अब जागने के बाद उसे भूलना नहीं। और नाइला की आंख खुल गई। दूसरी तरफ ज़हीर भी अपने मज़ार के हुजरे में गहरी मुराक़ब की हालत में था। अचानक उसने आंखें खोलें और मज़ार के पुराने दरख्त की तरफ देखा। वो आ गई है, ख्वाब में अपने आप से मिलने। वो उठा और हाथ में वही किताब लेकर किसी समझ चल पड़ा। शहज़ादी अब बदली बदली सी थी। महल में सब उसे खामोश शहज़ादी कहने लगे थे। वो दरबारी साजंदों के नगमों को छोड़कर चड़ियों की आवाज़ सुनती, आईनों की जगह पानी के अक्स में खुद को देखती और ज़ेवरात की जगह मिट्टी के चरागों से दिल बहलाती। एक दिन बादशाह ने उसे बुलाया। वो तकिए पर बैठा था, उदास। नाइला, तुम दिन ब दिन मुझसे दौर होती जा रही हो। नाइला खामोश रही, फिर नरमी से बोली, नहीं अबा, मैं खुद के करीब हो रही हूँ। और वो फ़कीर, बादशाह के लहजे में तलखी थी। नाइला मुस्कुराई, वो तो बस रास्ता दिखाता है, चलना तो मुझे खुद है। अब्दाल मालिक कुछ न बोला। वो जानता था बेटी अब महल की कैद में न आएगी, मगर वो ये भी जानता था वो फ़कीर इसकी नाइला को चूहने के बगैर बदल गया था। ज़हीर अब तराबलुस छोड़ने का सोच रहा था। उसने मज़ार के बुज़ुर्ग से कहा, मैंने जो दिया वो अब उसके पास है। अब मैं अगले सफ़र पर निकलता हूँ। क्या वो तुम्हें रोकेगी? ज़हीर ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत रोकती नहीं, सिखाती है कि जदाई भी इबादत हो सकती है। सुबह की खनकी में कसरे महताब की राहदारियों में चहल कदमी करते हुए नाइला को वो दालान याद आया जहाँ पहली बार फ़कीर ज़हीर से मुलाकात हुई थी। वो दालान अब सुन्नाटे से भर चुका था। न आवाज़, न घंटी, न वो चमकती आंखें, सिर्फ खामोशी। नाइला जानती थी ज़हीर जा चुका है। उसके जाने के बाद महल में सब ने सुख का सांस लिया, मगर नाइला के अंदर एक अजीब सी कसक बीदार हो गई। वो न रोई, न कुछ कहा, मगर वो फ़कीर अब सिर्फ एक नाम न था, वो उसकी तलाश का इस्तियारा बन चुका था। एक रात वो चुपके से मज़ार पहुंची। मज़ार के दर वो दीवार खामोश थे, मगर उनकी खामोशी चीख रही थी। बुजुर्ग खादिम ने नाइला को देखा, पहचान लिया, मगर कुछ न कहा। वो सिर्फ एक झोंपड़ी की तरफ इशारा करके बोला, वो अब यहाँ नहीं, मगर उसकी खुशबू बाकी है। नाइला अंदर दाखिल हुई। झोंपड़ी में सिर्फ एक चटाई, एक चराग और वही किताब कश्फुल क़लूब। एक सफ़हा खुला हुआ था जिस पर ज़हीर के हाथ का ख़त रखा था। ख़त के अल्फाज कुछ यूं थे, ए वो जो चांद की शहज़ादी कहलाती है, जदाई इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो वसल के बाद जदाई को न समझे वो मोहब्बत को क्या जाने। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ ताकि तुम अपने करीब आ सको। जो मुसाफिर हमेशा रुक जाए वो रास्ता भूल जाता है, और जो फ़कीर दिल से निकल जाए वो रूह में बसा रहता है। अगर कभी तुम खामोशी में मुझे महसूस करो तो समझ लेना मैं वहीं हूँ, तुम्हारे दिल के करीब। ज़हीर, वो जो मंजिल से ज़्यादा सफ़र को जानता है। नाइला देर तक बैठी रही, आँखों से कोई आंसू न बहा। शायद ज़हीर हूँ कि सबक ने उन्हें सब्र सिखा दिया था। वो चराग की लो देखती रही, जैसे ज़हीर की आँखों का अक्स। महल वापस आकर नाइला ने अपनी कमरे की सजावट बदल दी। नगीने, आईने, रेशमी पर्दे हटा दिए। अब उसके कमरे में मिट्टी की खुशबू, किताबों की खामोशी और एक चटाई थी, जैसे वो फ़कीर की झोंपड़ी उसने दिल में बसा ली हो। बादशाह एक दिन हैरत से बोला, नाइला, तो शहज़ादी है या दरवीश? नाइला ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो हूँ जो अपने दिल की शहज़ादी बन चुकी है। एक दिन तराबल्स की फसील पर एक काफ़िला रुका। दौर से ज़हीर ने शहर की तरफ देखा। वो जानता था नाइला ने जदाई के राज को पा लिया है। बुजुर्ग खादिम ने नाइला से कहा, कभी कभी अल्लाह किसी फ़कीर को शहज़ादियों के महल में भेजता है ताकि वो उन्हें आईने में असल दिखा दे। तुम खुश नसीब हो, तुमने अपना है पा लिया। नाइला ने आसमान की तरफ देखा, वही चांद, वही चमक, जैसे ज़हीर का सलाम हो। और यूं मोहब्बत की कहानी जदाई के राज से मुकम्मल हुई, क्योंकि असल वसल वो होता है जो जदाई में भी जिंदा रहे। ए वो जो चांद की शहज़ादी कहलाती है, जदाई इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो वसल के बाद जदाई को न समझे वो मोहब्बत को किया जाने। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ ताकि तुम अपने करीब आ सको। जो मुसाफिर हमेशा रुक जाए
वो रास्ता भूल जाता है, और जो फ़कीर दिल से निकल जाए वो रूह में बसा रहता है। अगर कभी तुम खामोशी में मुझे महसूस करो तो समझ लेना मैं वहीं हूँ, तुम्हारे दिल के करीब। ज़हीर, वो जो मंजिल से ज़्यादा सफ़र को जानता है। नाइला देर तक बैठी रही, आंखों से कोई आंसू न बहा। शायद ज़हीर हूँ कि सबक ने उन्हें सब्र सिखा दिया था। वो चराग की लू देखती रही, जैसे ज़हीर की आंखों का अक्स। महल वापस आकर नाइला ने अपनी कमरे की सजावट बदल दी। नगीने, आईने, रेशमी पर्दे हटा दिए। अब उसके कमरे में मिट्टी की खुशबू, किताबों की खामोशी और एक चटाई थी, जैसे वो फ़कीर की झोंपड़ी उसने दिल में बसा ली हो। बादशाह एक दिन हिरत से बोला, नाइला तो शहजादी है या दरवीश? नाइला ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूँ जो अपने दिल की शहजादी बन चुकी है। एक दिन त्राबलुस की फसील पर एक काफिला रुका। दौड़ से ज़हीर ने शहर की तरफ देखा। वो जानता था नाइला ने जदाई के राज को पा लिया है। बुजुर्ग खादिम ने नाइला से कहा, कभी कभी अल्लाह किसी फ़कीर को शहजादियों के महल में भेजता है ताकि वो उन्हें आईने में असल दिखा दे। तुम खुश नसीब हो, तुमने अपना अक्स पा लिया। नाइला ने आसमान की तरफ देखा, वही चांद, वही चमक, जैसे ज़हीर का सलाम हो। और यूं मोहब्बत की कहानी जदाई के राज से मुकम्मल हुई, क्योंकि असल वसल वो होता है जो जदाई में भी जिंदा रहे। कसर महताब की वो शाम शायद अपनी नौयत की आखिरी थी। दरख्तों पर खिज़ां की पत्तियां आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थीं, जैसे हर शय रुखसत होने को तैयार हो। नाइला उस पुरानी खड़की के पास बैठी थी जहाँ से वो अक्सर चांद को देखा करती थी। उसके हाथ में कशफुल क़लूब था और लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो बहुत कुछ पा लेने के बाद ही आया करती है। वो दिन आ चुका था जिसका ज़हीर ने वादा किया था। जदाई मुकम्मल हो चुकी थी और अब उसके बाद कुछ और न रहना था सिवाय आखिरी दुआ के। शहर तराबलस में एक नई लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई, नाइला की ख्वाहिश पर। इसका नाम रखा गया बाबे फ़कीर। ये जगह किसी महल से कम न थी, मगर वहाँ सोना, चांदी, सिंग मरमर न था। सिर्फ किताबें थीं, हिकमत, इल्म और खामोश गोशे। इफ्तिताह के दिन नाइला ने खुद वहाँ जाकर एक छोटा सा ख़त पढ़ा। दरबारी, आलम, शहरी सब सुनने को आए और नाइला ने नहायत सादगी से कहा, ये कतब खाना उस फ़कीर के नाम है जिसने मुझे आईना दिया, उस मुसाफिर के नाम जिसने मुझे दिल की आवाज़ सुनना सिखाया, उस जदाई के नाम जो वसल से ज़्यादा मुकम्मल थी, और उस मोहब्बत के नाम जो सिर्फ दुआ में ज़िंदा रहती है। इसके बाद नाइला रोज़ 1 घंटा इस लाइब्रेरी में बैठती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती, बुज़ुर्गों से दुआएं लेती और कभी कभार फ़कीर ज़हीर के अल्फाज दोहराती। इधर ज़हीर कहीं दूर एक दूसरे शहर की मस्जिद में बैठा था। अब उसके चेहरे पर सफ़ीद दाढ़ी, माथे पर सजदे का निशान और हाथ में एक मसूदा था। सफ़र दिल। एक शागिर्द ने पूछा, मुर्शिद, क्या आपको शहजादी की हदायत मिलती है, याद आती है? ज़हीर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, याद वो होती है जो जदाई को दिख दे। वो तो मेरे दिल में ऐसे है जैसे रोशनी आंखों में, कभी दुखती नहीं, बस रहती है। शागिर्द ने फिर पूछा, आपने कभी उसे आखिरी बार देखा? ज़हीर मुस्कुराया, नहीं, मगर मैं हर रोज़ उसकी दुआ सुनता हूँ। वो खामोशी में जो दुआ करती है वो मुझ तक आ जाती है। एक रात नाइला कसरे महताब के सहन में आसमान की तरफ देख रही थी। उसने हाथ बुलंद किए और आहिस्ता से दुआ की, आए रब, जिसने मुझे कैद में आज़ादी दिखाई, खामोशी में आवाज़ दी, जदाई में करबत अता की, उसे सलामत रख जिसने मुझे मेरे आप से मिलवाया। इसी लम्हे किसी दूसरे शहर में ज़हीर की आंखों से आंसू गिरे। वो जानता था ये आखिरी दुआ थी और इसी में वस्ल कामिल था।